Welcome friends. So we are back in DD learning. So in our DD learning, so we have started a series on lot of videos. So we have the different two videos at this moment, and I'm really being happy that with the viewers that they are really liking that, and we are getting a lot of loves from you people. So in future also we are looking forward. So today what a new topics what we are going to learn is your real function. So we are going to study today that what is real function. So there are a lot of things in our lives which depends on the real functions, but today we are not going to study in like that way. We are going to follow a very few simple examples to understand that's what is actually the real function is. So suppose we have a function. In the last two videos we have discussed about the cross product of two sets, and then from there we came to know that what is the relation. So we came to know that relation is nothing, it is the subset of the cross product of two sets. And then we came to know that the functions are also the relation, but not all relations are function. The relations which are one to one, the relations which are many to one, those type of relations are called functions. And even we have discussed about the functions which are in discrete forms. So over there we have learned that how to find the domain of that functions and how to find out the range of that functions. But today our topics is real functions. We have a lot of different types of functions in our lives, in our real lives, which are all real functions. So today we are going to say what that first what is real functions, and after that we will discuss about that how to find the domain of a real function, and then we will follow it with range of real functions. So in today's video we are going to discuss about the three main of this. So in DD learning we are giving more focus on the each and every topics in the depth, and it is being for the students who are studying in class 11 and or in class 12, even for the students who are going for the entrance examination preparation. For them also the questions will be there. So we will discuss about the different types of questions which comes in this sort of an entrance examinations. So just follow us, and whatever in the extra, whatever the new things you want from us, please let us know. We are being in Telegram, so please share your experience, and please share your what you want extra from us, and we'll be very happy to produce that. So please come back to real function. Suppose we have a function of x as x minus 1. Well, over here it is a real function. Why I am telling this is a real function? Because we all know that the functions are nothing. They are the subset of the cross product of two set on the given condition. That particular subset is following one to one or many to one condition. Now in case of a real function, like over here my f is a real function, it will be the subset of r cross r. Now what I mean by r? R means the set of real number. R means set of real number. That is from minus infinity to plus infinity. So real functions are nothing, they are going to be the subset of r cross r. So the domain of the real functions will be from r, and the range of the real function will also be the subset of r. Now how the discrete function is different from the real functions. In case of the real functions, the inputs are going to be continuous. Now the question is arising that what I mean by continuous.
Continuous means, suppose if I say, ask you people that what is the next real number after x equal to 1. Now nobody can say that what is the real number after 1, but there exists a real number after 1. Now somebody can say no, the after 1 the real number is 1.01. Well, accept that it is a real number, but it is not the real number after 1. After 1, somebody can also say that after 1 the real number is 1.001. Now somebody else of you can say no, it is going to be 1.0001. And somebody else can say no, I will put after 1 and then point and then 10 zeros and then 1. So you are coming closer and closer to 1. But you cannot say that what is the next number after 1. That means, what I want to say, that the real numbers are continuous means you cannot count. Anything which is countable, they are discrete. And anything which is not countable, it's continuous. So, in case of the real functions, that my inputs cannot be like in a I cannot say that I have given the input as 1, then my next input will be this. I cannot say that. But there is an input. There is an input. But I cannot say that after this, the input will be this. So, how we are going to find out the domain of a real functions? Because when the functions input is going to be what, how we are going to frame that particular set of the domain of that function? That's a big question. So that's what we are going to learn today, my friend. That's in domain of real functions, how to get it, and the outputs. Now since the inputs are all the different real number possibles which are going to be a continuous types, definitely the outputs is also going to be the continuous. And so in that particular case, that what will be the range of that real function? So the problem we have, the challenge we are facing over here in case of a real function is that the numbers are going to be, for inputs or for the output, is going to be continuous. So when it is being a continuous, then how to find the domain of that real function and the range of real function, that we will learn. So friends, let's start with a very simple example. I had given function of x equal to x minus 1. So if you see very closely, we can represent this as y equal to x minus 1. Now well, if you say that this y equal to x minus 1 is nothing, it's a linear relation. It's a linear relation. Now in case of the linear relation, what I mean by a linear relation? Linear relation means if I have to give the answer like in an algebraical way, then a linear relation, a linear function is a function in which the expression which you have, like over here we have the expression as x minus 1. So it's a polynomial. It's a polynomial of degree 1. So if somebody asks me that the algebraical way to define that what I mean by the real function, then it is nothing. It's a functions in which we have a polynomial of degree 1. That's what's by algebraical definition. But somebody if asks me that geometrically how you will define linear functions. Well, my friend, that linear functions are nothing. Graphically, it's a straight line. It's a straight line. Well, if you see, if I compare it with y is equal to mx plus c, so well over here we can say that the value of m is 1 and the value of c is minus 1, where m is the slope of that straight line and c is the y-intercept. So we can give the interpretations of a linear functions we can give that interpretations as per the algebraical way as well as in a geometrical way. So my friends, in the daily learnings we are going to have a lot of graphical way of interpretations, and that is being a very very new for you people will be to know that's how to see how to find the domain of the functions if the graph of that function is being given, and how to find out the range of the function when the graph of that function is being given. So please follow us. So let's go over here
In here, what do we have? Y equal to x minus 1. So the big question now is how to find the domain of this real function. Why this is a real function? Because it is a subset of R cross R. So friends, over here, as an input, we are going to put the value in place of x. Now if you say that in y equal to x minus 1, as an input, I can use any real number. Any real number, because mathematically, if a case arises that by using any real number, the output is becoming undefined. There are a lot of ways to check that whether it is being undefined or not. In the gradual exam, as I will give you other example, then you will come to know that how to check whether it is being undefined or not. But in this case, y equal to x minus 1, I can substitute my x as any real number. So in this case, my domain of this function will be all the real number. So we came to know that how to find out domain of this particular function. Let's have few more examples, so then our ideas will get cleared that how to find out the domain of a function. So now we have a function, a real function, as function of x as equal to function of x as equals to 1 upon x minus 1. So it's a function, this type of functions are called rational function. Now the question you can ask me that what is rational function? Rational function, the functions which are being in the form of polynomial by polynomial. That means in the numerator also will have a polynomial and in the denominator also will have a polynomial. So in the numerator, if you follow that we have a polynomial of degree 0 because the constant is there, and in the denominator we have a polynomial of degree 1. So this type of functions are called rational functions. We'll discuss about the different types of function in more details in our coming video. So please follow the daily learning to further things. So let's focus now over here in function of x as 1 by x minus 1. Function of x as 1 by x minus 1. So now you want to now suppose they have been asked that what is the domain of this function. Now in this case, if you say that if I use the value of x as 1, then the denominator of this real function will become 0. So if the denominator becomes 0, then in that case mathematically it's an undefined. So domain of this function will be, I can use as a value for x as any real number, but my friend I cannot use 1, right? हम लोग यहाँ पे 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे 1 यूज करेंगे तो व्हाट विल हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होगा कि डिनोमिनेटर आप 0 हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो ये मैथमेटिकली डिफाइंड है कि भाई 1 को 0 से डिवाइड करो. अगर आपको मैं एक लॉजेंस देता हूँ और बोलता हूँ कि आप ये 0 आदमी में डिवाइड कर दो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना. दैट बिकम्स डज नॉट मेक एनी सेंस कि एक पर्टिकुलर चीज को 0 आदमी में डिवाइड करो. So how does it make any sense? So for that reason 1 divided by 0 does not make any sense. It's an undefined mathematical statement. So that's why if you see over here I cannot use, हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 1 use नहीं कर सकते हैं. So since we cannot use the 1 as a input over here, तो हम लोग का function का जो domain होगा it is going to be all the real number लेकिन 1 को छोड़ के other than 1, right? So that's what's one of the other example you can say over here. I will give you one more examples. Okay. चलो भाई देखते हैं हमारे एक एग्जाम्पल में. आज हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जो कि ना आपका 12 का एग्जाम में आता है या 11 का एग्जाम स्कूल का एग्जाम में आता है. बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग वर्कआउट करेंगे डोमेन एंड रेंज के ऊपर. वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द डोमेन एंड रेंज विच द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच कम्स इन आवर entrance exams, because in every entrance exam 1 to 2 question definitely comes जहाँ पे आपको domain and range पूछा जाता है. तो you should know how to find out the domain and range. आज बहुत ही simple sums करवा रहे हैं, and आगे कुछ भी आप लोगों को DD learning से extra चाहिए तो we are in Telegram, आप वहाँ पे follow कीजिए, वहाँ पे आप अपना comments दीजिए, and so we'll be very happy to get your comments and we'll try our best
to make the daily learning more supportive for you people, because it is for daily learning is for you people. So friends, let's have one more example, right? Real function. जिंदगी भी एक रियल फंक्शन है. सो लेट्स सी ओवर हियर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखा गया है as 1 by x square plus 3x plus 2. So it's a real function. Why it's a real function? Again I will just remind you, because it is a function from R to R. Now certainly people can ask me, ये आपने क्या लिख दिया? R arrow R. It is nothing. It is another way to symbolize that, as I said earlier. क्या बोला था मैंने कि फंक्शन जो है ना, it is a subset. Real function is a subset of R cross R. तो ये चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं from R to R. So this is another way of a symbolic notation to state about the real function. तो भाई अभी हम लोग चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? डोमेन निकालने. ओके, आ जाओ, निकालते हैं इसके डोमेन. इसके बाद आप लोग ट्राई करना, एक समय दूंगा, आप लोग ट्राई करोगे एंड देखोगे कि अगर आप लोग, फिर उसके बाद मैं करूँगा वो क्वेश्चन को. ठीक है, तो चलो पहले इस क्वेश्चन का क्या निकालेंगे हम लोग? डोमेन. लेट्स फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस. ओके ओके, सो ये इसका डोमेन कैसे निकलेगा? तो नाउ वी कैन टू नो कि भाई मैथमेटिकली कोई भी चीज अनडिफाइंड होने का एक तरीका हम लोग के पास हाथ पे आ गया कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का इफ इट्स फंक्शंस डिनोमिनेटर बिकम जीरो फॉर सम इनपुट्स, तो फिर वो फंक्शन आपका अनडिफाइंड होता है. तो भाई यहाँ पे भी आपका वही चेक करना है हम लोगों को. तो हम लोग कैसे इसे प्रोसीड करेंगे? विल स्टार्ट लाइक दिस वे दैट फंक्शन ऑफ x is undefined. भाई किसके लिए वो अनडिफाइंड हो रहा है वो निकालते हैं. तो अगर हम लोग को जैसे पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो भाई इसको हटा दो. भाई जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसे हटा दो, जो बचेगा वही हो जाएगा डोमेन. प्लेन सिंपल बात है, राइट? होता है ना कि भाई जो प्रॉब्लम करता है ग्रुप में उसे हटा दो, जो हट गया ग्रुप से वो हट गया, जो ग्रुप में रह गया दैट इज द डोमेन ऑफ दैट ग्रुप, राइट? So let's see over here in case of the function of x as 1 upon x square plus 3x plus 2. So let's find out the function of x is undefined for x square plus 3x plus 2 and that equals 0. अब तो भाई फैक्टराइज तो करना आता ही है हम सबको. चलो फटाफट सब फैक्टराइज कर लेते हैं. हाँ, इसको अगर हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइज करना है भाई, तो फैक्टराइज करेंगे तो व्हाट we will get over here. मिड टर्म को ब्रेक करते हैं. मिड टर्म तो पता ही है, यहाँ पे है आपका 3x इज द मिड टर्म, उसको ब्रेक कर दिया मैंने. सो यू ऑल नो, आप सबको पता ही होगा कि भाई फैक्टराइज कैसे करते हैं. क्लास 7 से करते आए हो भाई, सो यू शुड नो हाउ टू डू. नहीं है तो फिर क्लास 7 का भी वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसमें देख लेगा. ठीक है, तो लेट्स से हाउ टू फिनिश अप दिस. इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो वी विल गेट x plus 2 into x plus 1. तो फिर भाई यहाँ पे आ गया दो फैक्टर, एक है x plus 2 और दूसरा है x plus 1. अब ईच फैक्टर को अगर हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे, क्योंकि भाई देखो दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है दैट मीन ईच फैक्टर विल बी द जीरो, राइट? सो अगर हम लोग x plus 2 को जीरो बनाते हैं तो व्हाट वी विल गेट? हम लोगों को मिलेगा x minus 2 और x plus 1 को अगर जीरो करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1. तो भाई इससे क्लियर हो गया कि भाई इस फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो कब बनेगा? इफ यू गिव द इनपुट एज -2 और -1. भाई प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? -2 -1. प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? -2 -1. कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? भाई डालने से ही इसका डिनोमिनेटर जीरो हो गया. हटा दो उसको. ग्रुप क्या था भाई? फंक्शन मेरा रियल नंबर था, रियल फंक्शन था, राइट? इट्स अ फंक्शन फ्रॉम R to R. डोमेन भी तो भाई मेरा रियल नंबर ही होगा, लेकिन उस रियल नंबर पे दो आदमी ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. तो क्या करेंगे? उसको प्रॉब्लम क्रिएट जो कर रहे हैं उसे हटा दो, प्रॉब्लम वाले को रखना ही नहीं है. ओके, आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रॉब्लम करे उसे हटा दो. सो वेल ओवर हियर दैट्स हम लोग का डोमेन क्या हुआ? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज राइट हुआ, इट इज -1 -2. तो इस तरह से फंक्शन का डोमेन हम लोगों को मिल गया इस फंक्शन का. अब बहुत बड़ा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम जो होता है जो स्टूडेंट्स यू नो दैट्स आप लोगों को प्रॉब्लम जो होता है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं. अब हर एक फंक्शन का डोमेन निकालने का एक अलग अलग तरीका होता है.
तो हम लोग यहाँ पे इस डीडी लर्निंग में आप लोगों को ऑल द बेसिक टाइप ऑफ जो एलिमेंट्री फंक्शंस है, पहले हम लोग आपको वो सिखाएंगे कि उनके डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है एंड उनके रेंज कैसे फाइंड किया जाता है। ग्रेजुअली उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बढ़ाएंगे एंड आगे जाके आप देखोगे कि बहुत जो क्रिटिकल कुछ फंक्शंस हैं उनमें डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं। और इनके साथ साथ हम लोग ये भी दिखाएंगे कि अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन का अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, एक फंक्शन का ग्राफिकल फिगर अगर दे दिया जाए, तो उस ग्राफिकल फिगर से फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं, राइट। सो वेल माय फ्रेंड्स, ओवर हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर सम्स में हम लोगों को क्या ढूंढना था, डोमेन, और हम लोगों ने यहाँ पे डोमेन फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, हम लोगों ने वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में क्या था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था ना भाई। ये देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, सिंपल बात है। तो इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको इक्वल टू 0 करके हम लोगों को दो वैल्यू मिल गया। फैक्टराइज मिडटर्म ब्रेक किया था हम लोगों ने एंड x की वैल्यूज क्या क्या है, -2 and -1. So we get the value of x as -2 and -1 and for that the denominator is becoming 0. हटा दिया उसको, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो डोमेन भी मर गया। So we got the domain as r minus -1 -2. तो भाई यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहा है आज, सो जस्ट एंजॉय द वीडियोस। हाँ, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल्स। हाँ, अब देखो आपके पास एक फंक्शन ऐसा है कि फंक्शन ऑफ x इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। अब इस फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, ये भी आपका रियल फंक्शन, दिस इज आल्सो द रियल फंक्शन। मैं फिर वापस आप लोगों को बोलता हूँ कि रियल फंक्शन क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ R2R। तो वेल यहाँ पे इस तरह का फंक्शन, इस तरह का फंक्शन मींस व्हाट आई मीन बाय दैट, क्योंकि भाई इसके पहले आपने जो फंक्शन हम लोगों ने किया था ना, वहां पे कोई स्क्वायर रूट वाला साइन नहीं था भाई। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक आदमी आ गया और वो कौन है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। अब इस केस में कैसे हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे, अब देखो हम लोगों ने डोमेन फाइंड करने के लिए एक तरीका व्हाट वी हैव यूज्ड इज, हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन से वैल्यू ऑफ x के लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, और उनको हम लोगों ने हटा दिया था ग्रुप से, पूरा रियल नंबर से उसे हटा दिया, और जो बच गया दैट बिकम द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। यहाँ पे भी क्या होगा, वही ढूंढना है कि किस वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड होगा। अब वहां पे इन केस ऑफ दैट लास्ट टू सम्स व्हिच वी हैव डन, वहां पे आपने देखा कि वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा था फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ x जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे ना आप देखो स्क्वायर रूट है। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि रियल नंबर के ऊपर, तो रियल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब आपका स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन डीडी लर्निंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी हम लोगों के ऊपर वीडियो बनेंगे, वहां पे आप डिटेल में इनके बारे में और स्टडी कर सकते हो। तो अभी तो बस के लिए मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ कि द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर मेरे दोस्त, इट इज अ व्हाट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग जो कैलकुलस जो कर रहे हैं ना दीदी, जो कैलकुलस, अरे बाप रे बहुत बड़ा बात बोल दिया मैंने, यू नो द कैलकुलस इज अ वेरी बिग थिंग। तो कैलकुलस होता क्या है, एंड यू ऑल नो दैट स्कूल में जब हम लोग 11 में आते हैं ना, तो सब दोस्त लोग वी आर जस्ट टॉक अबाउट, हम लोग सब बातचीत करते हैं भाई कैलकुलस 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 कैलकुलस। भाई इतना दिन तो बस सब ठीक था, लेकिन सडनली ये बंदा कैलकुलस कहाँ से आ गया, क्या काम क्या करता है कि ये इतना डरावना क्यों होता है। नो एक्चुअली इट इज़ नॉट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड हम लोग डीडी लर्निंग में यही फोकस करेंगे कि कैलकुलस आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बने, एंड दैट इज गोइंग टू बी real, you will really enjoy to know what is calculus. But abhi we are just started, we are just going to start the calculus. So bhai just we are being giving the engine on कर रहे हैं गाड़ी कैलकुलस का, उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि गाड़ी कहाँ पे जाता है। So boys please come. So well over here हम लोगों को क्या ढूंढना है कि भाई हम लोगों के पास एक फंक्शन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसका डोमेन। कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट लाइक दिस वे, दैट फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड
अरे सर इसके पहले तो आपने अनडिफाइंड बोला था, अभी आप डिफाइंड में पहुंच गए। तो कभी अनडिफाइंड का बात करेंगे, कभी डिफाइंड का बात करेंगे, तो यहाँ पे डिफाइंड का बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बोलिए। सो फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड। सो फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड कब होगा भाई? तो डिफाइंड तभी होगा जब ये रूट के अंदर भाई क्या नंबर आना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। जीरो भी नहीं आना चाहिए। जीरो आएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा तो 1/0 हो गया, काम खत्म। इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई भी चीज को जीरो आदमी में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कोई सेंस नहीं बनता है ना। सो फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर, राइट हुआ, x² - 9 ग्रेटर देन 0। तो भाई ये क्या बन गया? इनइक्वालिटी। क्या बनी? इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्यों भाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्यों है? बिकॉज ओवर हियर यू हैव एन एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। भाई x की हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, तो इसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमको बस ढूंढना है कि x की वैल्यू, जिसके लिए x² - 9 की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। We have to find out the value of x for which the x² - 9 is going to be greater than 0, my boss. So how to do that? So first thing, आप इनको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज तो करना आता ही है। a² - b², a² - b² क्या होता है? a + b times a - b। तो सभी को आता है। तो we are doing this from class 8। अब इतना तो आता ही है, नहीं आता है तो ठीक है, उसके लिए भी वीडियो बनेगा, आप वहाँ भी सीख लेना। क्लास 11 से जंप मार के 7 में आ जाना, ठीक है ना? लेकिन अभी ये सीख लो। फैक्टराइज हो गया, x - 3 × x + 3, राइट? अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। देखो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ किया। कौन सी लाइन है ये? रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन कहाँ से तक जाता है? -∞ to +∞। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे भाई? ईच फैक्टर को अगर इक्वल टू 0 किया जाए, इफ यू मेक द ईच फैक्टर इक्वल टू 0, भाई दो फैक्टर है मेरे पास, x - 3, दूसरी फैक्टर है x + 3। अगर ईच फैक्टर को अगर इक्वल टू 0 करें तो वैल्यू ऑफ x क्या आएगा? सही बोला आपने, इट इज गोइंग टू बी 3 एंड द अदर वन विल बी -3। प्लॉट कर दो भाई यहाँ पे। तो पहले -3 को प्लॉट कर दिया आराम से, और फिर 3 को प्लॉट कर दिया। अब चलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब क्या हो गया? साइन कन्वेंशन इज व्हाट आई वांट टू से कि भाई x की वैल्यू जब -3 से कम होगा तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो सीखना है। तो ठीक है, कैसे करें? एक नंबर ले लो, एक सैंपल नंबर ले लेते हैं भाई। -3 से कम एक नंबर वो ले लेते हैं, तो चलो -4 ले लेते हैं। -4 अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो -4 - 3 क्या देगा? -7, एंड -4 + 3 क्या देगा? -1। So -7 × -1 will give us what? A positive value. So sign convention wise it will be the positive over here. मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। हम लोग ने क्या किया कि -3 से कम कोई भी एक नंबर ले लो। चलो मान लो -4 ले लिया। -4 को अगर यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पे इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा? -4 - 3 एंड -4 + 3। तो वैल्यू क्या आएगा भाई? -7 × -1। तो वो कौन सी वैल्यू हुई? पॉजिटिव। सो वी गॉट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो मतलब ये हो गया कि -∞ to -3 इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर आप बोलना क्या चाहते हो कि x की वैल्यू जब -3 होगा तो आपने तो बस -4 के लिए चेक किया था, और जो नंबर है सबके लिए भी वही होगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि इसके पीछे तो कुछ तो रीजन होगा, राइट? हुआ। हम लोग जब ग्राफिकली चेक करेंगे, when we are going to do the graph of this real functions, भाई real functions मतलब हम लोगों ने क्या बात किया कि real function means f is a subset of r cross r। सर ये तो आप स्टार्टिंग से बोल रहे हो, कुछ और बोलो। yes my boy। तो मेरे दोस्त देखो यहाँ पे real functions means nothing, any particular graph on this rectangular Cartesian coordinate। बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने। इस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर लेते हो ना, तो ईच ग्राफ इज अ रियल फंक्शन। डिस्कस करेंगे आगे जाके, बट अभी तक के लिए बस इतना बोलूंगा कि ईच ग्राफ इज अ रियल फंक्शन। बट लेट्स कम बैक टू द थिंग इज दिस। व्हाट इज दैट? दैट साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे भाई। तो वेल ओवर हियर वी हैव -3 एंड 3, ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दे। भूल गए होंगे यहाँ पे हम लोगों को x² - 9 को क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए। क्यों? बिकॉज फंक्शन ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ x² - 9 एंड x² - 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। व्हाई x² - 9 शुड बी ग्रेटर देन 0? बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है।
जीरो जीरो भी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में है, जीरो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो अनडिफाइन कर देगा। तो x स्क्वायर माइनस 9 शुड बी पॉजिटिव, राइट। यू आर उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करके -3 and 3 आया, और फिर एक सैंपल पॉइंट लिया -4 जिसके लिए ये एक्सप्रेशन वैल्यू नेगेटिव आया, और हमने बोला कि लेस देन -3 में सिर्फ -4 नहीं, कोई भी नंबर अगर कोई भी रियल नंबर अगर हम लोग यूज करते हैं तो वैल्यू विल बी नेगेटिव। चेक करके देख लो भाई। अब ये ना चलता है ऑल्टरनेट, इसके पीछे भी रीजंस है, विल डिस्कस दैट नॉट ओवर हियर। आप एक बार के लिए इसे याद रखो, इट विल बी इजी फॉर यू एग्जाम हॉल में सॉल्व करने के लिए। तो ये चलता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल्टरनेट चलता है। अगर ये नेगेटिव यहाँ पे होता तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं। तो चलो हम लोगों को चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, पॉजिटिव। वी नीड्स द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x minus 3 into x plus 3 should be positive। पॉजिटिव कब हो रहा है, when the value of x is less than -3, और नहीं तो कब हो रहा है, when x is greater than 3। वेल तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि x का वैल्यू -3 से कम या x का वैल्यू 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हुआ, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -infinity to -3 यूनियन 3 to +infinity। सो वेल माय फ्रेंड्स, जस्ट अब देखो यहाँ पे कि हम लोगों के पास डोमेन आ गया। द रियल फंक्शन जो है ना, ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक्स है, इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज हम लोगों ने डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन किया, आगे जाके हम लोग डोमेन ऑफ दैट और मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग रेंज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो माय फ्रेंड्स, व्हाटएवर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को बोलना है फॉर टू द डेली लर्निंग, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, एंड व्हाटएवर द इन दिस फॉलो लिंक पे आप लोग अपना मैसेज भेज सकते हैं या आपका कमेंट्स दे सकते हैं। तो लेकिन जाने से पहले, आज का क्लास को कंप्लीट करने से पहले कुछ तो आप लोगों को दे के जाओ, ठीक है। इतना देर से तो मैं दे ही रहा हूँ आप लोगों को, एंड लॉट ऑफ लव दैट वी आर गेटिंग, लॉट ऑफ प्यार आप लोगों को मिल रहा है, व्यूअर्स भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इफ़ यू वांट एनीथिंग न्यू, आप लोग इस लिंक पे प्लीज़ फॉलो कीजिए, उसमें आप लोग अपना कमेंट्स दीजिए, एंड उसके साथ साथ भाई एक क्वेश्चन देता हूँ। अरे सर आपने क्या कर दिया, असाइनमेंट दे रहे हो आप लोग, असाइनमेंट नहीं है माय फ्रेंड। सो ये आप सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका आंसर जो है ना, ये आप कमेंट्स बॉक्स में आप छोड़ो, मैं चेक करूंगा। जिसको भी आंसर सही रहेगा मैं उन लोगों को जरूर बोलूंगा कि अगर उनका ये सॉल्यूशन सही है, एंड साथ साथ पैरेलली मैं नेक्स्ट क्लास में वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व भी करूंगा। तो आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, वन क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस बाय योरसेल्फ, ओके। सो द क्वेश्चन इज 1 upon square root of x minus mod x। सर ये तो बहुत गलत बात है, आपने करवाया सब सिंपल सिंपल, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x दे दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मॉड x। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए एंड फाइंड कीजिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, एंड प्लीज कमेंट जो बॉक्स में आप लोग प्लीज उसमें इसका सोल्यूशन भेजिए, एंड वी विल डिस्कस दिस domain of this particular functions in the next class। So we have, so my friend, this is the question जो आप लोगों को ट्राई करना है, आप लोग वर्कआउट कीजिए इसके ऊपर, वट एवर द सोल्यूशन आप लोग इस कमेंट्स बॉक्स में आप लोग उसका आंसर भेजिए, एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैं इसका सोल्यूशन आप लोग को दूंगा। सो आई एम feeling very excited and happy that the DD learning is really bringing something for you people। so मुझे आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ फॉलो अस, एंड बहुत सारे ढेर सारे प्यार दीजिए, एंड इन फ्यूचर वी आर जस्ट गोइंग टू मेक योर लर्निंग मच मोर ईजी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।